أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ رب العالمین اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر، تم نے دنیا کی زندگی میں تمہیں مال کی کثرت کو اکٹھا کرنے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے تم کو ہلاک کر دیا ہے۔ پوری زندگی تم لوگوں نے مال اکٹھا کرنے میں لگا دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ اب اس جگہ پہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، اور اس کے اترنا اور کلام اللہ کا ہونا اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ جس کی ذمہ داری رب العزت نے لی ہوئی ہے، کسی عام انسان نے نہیں لی، اللہ نے خود اس کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر ہم نے اس کو اتارا ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ جس طرح رب نے، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، ان کی ساروں کی ساری ضروریات بھی رب العالمین نے رکھی، اسی طرح اگر رب نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم پر حجت ہو جائے، انسانوں پر حجت قائم ہو، اس کو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب العالمین نے لیا۔ وہ شخص، وہ آدمی اگر پیدا ہوا ہے، اگر کسی انسان کو یہ معلوم نہیں میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، میں نے یہاں ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا، میرا یہاں سے کوچ ہے کہ نہیں ہے، میں کیوں آیا ہوں، اگر اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، اس کو حیوان کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو انسان ہونے کے ناطے سے اگر وہ اس میں یہ چیزیں ساری کی ساری اس نے اپنا نسب العین تکاثر کو بنا لیا، مال جمع کرنے کو بنا لیا، اس کا نسب العین ہی ہے، اس کا ادریش ہی کوئی نہیں ہے، اس کا آئیڈیل ہی کوئی نہیں ہے، میں نے کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، صرف اور صرف اس نے اپنا نسب العین یہ بنا لیا میں نے مال جمع کرنا ہے، میں نے شہوت کرنی ہے، اور میں نے زندہ رہنا ہے، اور میں نے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ انسان کا شیوا نہیں، یہ جانور کا شیوا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنا مطمع نظر انسان، اس کا ایمان نہیں کسی چیز پر، اور اپنے مال کی محبت میں وہ دن رات لگا رہتا ہے، وہ ہانکتا رہتا ہے، تو پھر وہ اس کی پاداش میں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر ڈاکے بھی ڈالے گا، تانا زنی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، بددیانتی بھی کرے گا۔ اگر کسی جگہ پہ اگر نیک کام بھی کر رہا ہے تو وہ اس میں اس کا ذاتی مفاد ہوگا۔ ایسے انسان کی بات ہے جس کا کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے، جس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ انسان کو رب العزت نے اس کی مرضی سے پیدا نہیں کیا، رب نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو ماریں گے، اور جو اس نے رزق لینا ہے اسے لے کر رہے گا۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس نے اس کثرت کو اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے۔ جب یہ بنا لیتا ہے تو اس کا ہر فعل، ہر کردار اس کا گھٹیا انسان کا ہو جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا، حیوان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی، جو اس کے پیغمبروں کی جو باتیں مانتا ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عظیم شخصیات، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور اس کا سیمپل بنا کر بھیجا، اس طرح کہ تم نے انسان بننا ہے۔ اور ہماری رہنمائی کے لیے رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی
भेजा और साथ किताब हिदायत, किताब जिंदगी। इस किताब को पढ़ पढ़ कर तुमने दूसरी किताब लिखनी है। वो किताब जब तुम पढ़ोगे, वो जब हम किताब देखेंगे, अगर इस किताब के मुताबिक होगी, फिर तुम इंसान कहलाने के हकदार होगे, फिर तुम अशरफुल मखलूकात कहलाने के हकदार होगे। अगर ये उसकी तशव्वी नहीं होती, अगर इंसान अपने आप को अपना उस चीज का सिर्फ तकासुर को जमा करने का अपना मतमा नजर बना लेता है, माल और दौलत इकट्ठी करने का मतमा नजर बना लेता है, उसका नस्बुल ऐन ये हो जाता है, तो फिर वो किसी भी घटिया चीज में के किरदार अदा करने में कभी कोताही नहीं करता। और वो हैवान से भी अपनी तस्कीन के लिए, अपनी तशफ़ी के लिए, अपना जो उसकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है, माल जमा करना, और फिर वो शहद में खंजीर से बढ़ जाता है। कमीन की हद जो होती है उसके वो ऊंट से भी आगे निकल जाता है, और भेड़िए से ज़्यादा सफाक हो जाता है। इंसानों ने जब इंसानों को कत्ल किया और उसके मीनार लगा दिए, जब एक भेड़िया दाड़ता है वो कितने जानवरों को ख़त्म कर लेता है। और इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ काना ले इब्ने आदम, अगर इब्ने आदम के वादियान में मालन, माल की होते, इसके मतमा नजर इतना है, अगर इसकी 2 वादियां होती माल की, मालो दौलत की, लब तगा वादियन सालिसन, तीसरी की भी वो ख्वाहिश करता। वला यमलाउ जौफ बनो आदम, आदम के बेटे का पेट नहीं भर सकता, इल्लत तुराब, स्वाय मिट्टी के। इसकी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने भी इस दुनिया को सजा कर रख दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, हमने इस दुनिया को सजा दिया है, जीनत बना दिया है, और साथ माल के साथ, औलाद के साथ, बाकी चीज़ों के साथ और औरतों के साथ, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ, हम तुमको आजमाएंगे, ये चीज़ें तुम्हें पेश करेंगे, और साथ ही ये खौफ से, ये भी तुम जो, लेकिन तुम्हारा जो मतमा नज़र होगा सिर्फ उस दुनिया होगी। और रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये इस शख्स का ये मतमा नजर होगा, लेकिन जब हमारे पास तो आएगा, फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मलाक़ीकुम, वो जो मौत जिससे तुम भाग रहे हो, माल इकट्ठा कर रहे हो, ऐसा है कि जैसे तुमने बेबहा मरना तो तुमने है नहीं, तुम्हारा जो नस्बुल ऐन है बस यही, तुमने जिंदा रहना है, और तुम्हें कोई दुनिया का कोई पकड़ तबारी होनी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, तुम जिस मौत से तुम भाग रहे हो तुम्हें लाज़मन मिलकर रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा, जो ज़ाहिर और बातिन को जानता हो, पोशीदा और गवाही है और देख रहा है जो तुम कर रहे हो, फिर भी तुमको ढील दी है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और तुमको वो बताएगा कि जो तुमने हरकत की हैं, जो तुमने ये काम किए हैं, तुमको बताएगा रब्बुल इज़्ज़त कि तुम ये किस तरह की ये काम करते हो। तो और इसीलिए रब्बुल आलमीन ने हमें खुद आगाह कर दिया, फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, इंसान को तबाही बर्बादी में ले गया इसके माल जमा करना, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्र में पहुंच गया। इसको यकीन नहीं था। अल्लाह सौफ़ा तालमून, हरगिज़ नहीं, बहुत जल्द तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, तुम्हें बहुत जल्द यकीन हो जाएगा, तुम मालूम हो जाएगा। जिस तरह आदमी ख्वाब में कितनी कितनी लंबी सैरें कर आता है, कितने ख्वाब देखता है, जब उसकी आंख खुलती तो उसको वो तो इधर ही खड़ा होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करके आता है। इसी तरह तुम ये जिंदगी लगेगी, और जब तुम्हें तुम्हारी पकड़ होगी तुम्हें इतना ही पता चलेगा भी ये थोड़ा सा टाइम है। हमें गौर करना चाहिए, हमें फिक्र करनी चाहिए। रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, काश के तुम जानते, तुम्हें इल्म यकीन हो जाता। इल्म यकीन की और चीज होती है, इल्म के उसको यकीन है। जिस तरह के आप देखेंगे कि एक जगह पे इंसान देखते हैं वहां धुआं उठ रहा है, तो उसको इल्मुल यकीन हो गया, उसका इल्म उसको हो गया भी वो वहां धुआं उठ रहा है, वहां आग लगी हुई है। जब वो उस आग के पास पहुंचेगा, वो देखेगा कि
वो आइनुल यकीन, उसको अपनी आंख से देख लेगा ये वाकई ये आग लगी हुई है। और उसके बाद और उसको मजीद उसने परखना था फिर हक़ुल यकीन, फिर हक़ुल, जब वो हाथ उसमें डालेगा, जब वो उसको झुलसाएगी, उसका सेक निकलेगा, तो फिर उसको हक़ुल यकीन हो जाएगा। तुम्हें आइनुल यकीन, हक़ुल यकीन तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें ये लाजमन पता चलेगा, तुम्हारी यकीन किया तो लतारावुन्नल जहीम, तुम उस आग को देखोगे। लतारावुन्नल जहीम, तो उस आग में तुम देखोगे कि क्या हो रहा है। सुम्मा लतारावुन्ना आइनुल यकीन, तुम्हें आंख का वो जो यकीन है वो भी हो जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तुम्हें एक एक नेमत का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें हैं वो हमारे लिए बहुत सिद्ध हैं। व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, अगर तुम अल्लाह की एक नेमत को भी शुमार करने लगो, उसके फवायद से मार करने, सुबह से लेकर शाम तक तुमने कितनी मर्तबा अपनी आंख से देखा, ये हाथ जो तुम हिला रहे हो, इससे काम ले रहे हो, अल्लाह ताला के हुक्म से ले रहे हो, ये कितनी दफा हिल रहा है, कितने ये काम कर रहा है, और ये एक नेमत है अल्लाह ताला की जिसका तुम शुमार, उसके फवायद नहीं तुम शुमार कर सकते। अगर तुम्हें कहा जाए भाई 2 मिनट के लिए मुझे एक अपना हाथ दे दो या आंख दे दो, इंसान पर कैसी बात गुजरेगी। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हवा बराबर रखी, एक धड़कन आती है, दूसरी धड़कन उसका सवाल कर रही होती है और कह रही होती है कि भाई ये जो धड़कन है अल्लाह ताला तो बगैर मांगे हमें दे रहे हैं, ये अपनी नेमतें, और खाने पीने के लिए दे रहा है, हवा दे रहा है, ये सारी जिंदगी का जो निज़ाम चल रहा है ये रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हो रहा है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है। और ये जो सूरत है इसके ऊपर ये सिर्फ आदमी को याद दहाने के लिए होती है, लेकिन आदमी को खुद गौर करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरा मुकाम क्या है, मैं किस तरफ जाना है। और रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ही इसी तरह की मिलती हुई सूरत दूसरी जो है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, वैल है, तबाही है जो एक आंख से किसी को चुंबड़ लगाता है, जो तकलीफ देता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वो माल जमा करता रहता है। उधर आया था अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमको इस कसरत जमा के माल की जमा करने में उसने तुम्हें हलाक कर दिया, तुम्हें कब्रों तक पहुंचा दिया है। और इधर फरमाया अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो ये माल जमा करता है और उसको गिन गिन के अपने पास रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अहलदा, वो ख्याल करता रहता है कि ये तो माल हमेशा हमेशा मेरे पास ही रहना है, ये मेरे पास ही रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कल्ला लजुम्बज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, ये शख्स चकना चूर हो जाएगा जिस जगह इसको हम फेंकेंगे। वमा अदराका मल हुतमा, तुम्हें पता है क्या हुतमा क्या चीज़ है? फरमाया नारुल्लाहिल मौक़दा, जो जलने वाली आग है ना, नारुल्लाहिल मौक़दा, उस आग में जो जलने वाली आग उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल देंगे। वो आग कैसी होगी, किस तरह की होगी? अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक पहुंचेगी। आज हमारे जब आग लगती है, जो किसी किस्म को झुलसता है इंसान, उसकी खलड़ी, उसका चमड़ा जो वो झुलसता है, दिखने वाली बात है। अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, ये उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो जिल्द है, उसको वो जलाती है। वो आग जो होगी वो इंसान के दिलों को जलाकर रखेगी। अल्लती तत्तालिउ इन्नहा अलैहिम मुसदा, और वो आग को ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। क्यों? ये कि उसकी पूरी की पूरी ये ले, जिसने नाफरमानी की, जिसने अल्लाह के हुक्म को नाफरमानी किया, जिसने बददयांती की, जिसने सिर्फ और सिर्फ माल के पीछे पड़ा रहा, दीन के नाम से माल को बेचा, लोगों को जेबें काटी, हराम खोरियां की, सूद को अपने लिए हलाल किया, तमाम चीजें जो हैं अल्लाह ने रोकी हुई हैं, उनकी मुहर्रमात को मा आमना, वो शख्स मा आमना, कुरान के ऊपर उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसने हराम करदा चीजों को अपने ऊपर हलाल कर लिया।
मा आमन बिल कुरान मन इस्तहल्ला मुहारिमहु, वो शख्स कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की किताब के ऊपर उसका कोई ईमान नहीं है, जिसने हराम करदा चीज़ों को अपने ऊपर हलाल कर लिया। ये बड़ी देखने वाली बात है, हमारे सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ने इस कलाम को, इस बाबरकत जो कलाम है, ये नाजल किया है, दिल के ऊपर नाजल किया, बोला गया है। ये कलाम जब बोला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी गुस्से से बोलते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, कभी किसी दूसरे के जरिए बोलते हैं, कभी किसी को कहते हैं इसको कह दो जी ये बात है, वो उससे यानी अल्लाह ताला को गुस्सा होता है। लेकिन जब हम भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की बजा लाते हैं, तो अल्लाह के कलाम को अल्लाह की ज़बान में अल्लाह से हम बात कर रहे होते हैं, अल्लाह की ज़बान से। ये अल्लाह की कलाम है, इसके ज़रिए हम अल्लाह से बात करते हैं। अपनी ज़बान में हम बात नहीं कर सकते, अल्लाह के दिए हुए अल्फाज हम लेते हैं, उन अल्फाज के ज़रिए हम अल्लाह से बात करते हैं। और जब ये कारी हजरात, जब ये इमाम सब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे दूसरी सूरत पढ़ते हैं, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, फिर इंसान रुकू में चला जाता है, वो कहता है मैं सरे तस्लीम हम कर लिया है, इस बातों को जो बातें बताई गई हैं मैं इनको मानूंगा, इसके ऊपर अमल करूंगा। जब ये बंदा कमिटमेंट करता है अल्लाह ताला के साथ, फिर वो कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अगर ये तूने बात सच किया है तो अल्लाह ने तेरी दुआएं सारी की सारी कबूल कर ली हैं। समी अल्लाह, उस अल्लाह ने कबूल कर ली, उस अल्लाह ने सुन ली ये बात। किसने? लिमन हमिदा, जिसकी तो तूने उसने तारीफ की है। तो हमें देखना चाहिए। और जो लोग नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ और सिर्फ डील दी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, ये तुम ख्याल ना करो कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से गाफिल है, उनको उसको पता ही नहीं है, भाई अल्लाह ताला ने तो भूल जाना है, हम तो ये जुर्म कर लेते हैं तो अल्लाह भूल जाएगा, ये ऐसा नहीं है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, जो जालिम जो है ना, जो काम करते हैं, अल्लाह ताला को उससे बेखबर ना समझे, अल्लाह ताला को उससे दूर ना समझे। इन्नमा युअख्खिरुहुम, अल्लाह उनको खुद डील दी हुई है, अल्लाह ने उनको टाइम दिया हुआ है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन, उस दिन के तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, जिस दिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यकदम उसको ये होगा ये मेरे साथ क्या बना यार, ये भाई ये तुम जो करतूते करते रहो, जो तुम झूठ बोलते रहो, जो तुम बददयानती कर रहे हो, जो तुम बदअहदी करते रहो, उस बदअहदी की वजह से अल्लाह ने तुमको छोड़ा हुआ था। अब वो वक्त आ गया है, तुम्हें टाइम दिया था, तुम जितना मर्जी कर लो। और अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत एक जगह पे ये भी फरमाते हैं कज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, इसी तरह हमने हर बस्ती में, कज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, हर बस्ती में हमने छोड़ दी है अकाबिर मुजरिमीहा, जो इसकी बड़ी बदमाशियां करते रहेंगे, जुर्म करें, लियमकरू फीहा, वो उस बस्ती में जुर्म करें, झूठ बोले, बददयानती करें, लोगों के साथ ज्यादतियां करें। वमा यमकुरूना इल्ला अनफुसहुम, ये जो जुर्म कर रहे हैं अपने साथ ही कर रहे हैं। वमा यशउरून, इनको पता नहीं है। ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसको जब हमारे दिलों तक नहीं उतरेगा, हम दिल से उससे किसकी बात नहीं मानेंगे। और इसी तरह जो जितने नेक लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए वक्त अलहदा दुश्मन मुकर्रर कर देता है। कुरान पाक में आता है वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन, हर नबी के लिए हमें दुश्मन मुकर्रर कर दिया और शैतान उसके साथ गए। कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वश शयातीनिल इंस वल जिन, इंसानों में से और जिन, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन, वो खबरें पहुंचाते हैं एक दूसरे की, भाई अब ये हो रहा है, ये भी शैतानी करनी है, ये शैतानी करनी है। ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, जो सजाद जाकर सोने की तरह वो पेश करते हैं वो बातों को। वलो शाअ रब्बुका मा फ़अलू, अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग ऐसे हरकतें ना करते। ये हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, हमारा मुकाम क्या है। और जो बंदा ये नहीं सोचेगा, उसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर उसको जानवर भी कहा है, डंगर भी कहा है, जानवर से भी आगे गुजरा हुआ कहा है। फिर और ये भी कहा है इनके ऊपर
علم ہونے کے باوجود، ان کو معلومات ہونے کے باوجود، ان کے وہ انفارمیشن ہونے کے باوجود یہ جاہل کے جاہل رہیں. وہ علم کام کا نہیں ہوتا جس پر یقینی حد تک اس کو یقین نہ ہو، وہ بزدل ہوتا ہے. اور جس آدمی کا جو یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، وہ اس تھپیڑے، اس چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے. وہ تھپیڑے آ کر، آزمائشیں آ کر، ابتلا آ کر، وہ سیلاب اس کے اوپر گزر جاتا ہے. جب بعد میں دیکھا جائے وہ چٹان کی طرح ایک جگہ مقام پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے، حرام مال کمانے سے بچائے، تکاثر مال سے بچائے. اور اگر اللہ تعالیٰ رب العزت نے کسی کو دی ہے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، جو اس کو پسند ہے اس کے ذریعے میں وہی خرچہ کرے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے.